Hello students, in the last video we have discussed indeterminate forms, infinity by infinity, and given some example of that. So in this video we will discuss some more indeterminate forms such as 0 into infinity and infinity minus infinity. For these two indeterminate forms also we will use L'Hospital's rule, but for that first we have to change these forms to 0 by 0 form or infinity by infinity form. Only after that we can apply L'Hospital's rule. So let us do some examples on these two forms. So first of all we will give some examples of 0 into infinity form. So our first example is evaluate limit x tends to infinity x into tangent of 1 upon x. So check what form is this. If you put limit x tends to infinity over here, so x is infinity and tangent 1 by infinity means tangent 0 will comes out to be 0. So this is your 0 into infinity form, and we will change this either to infinity by infinity form or to 0 by 0 form, whichever is convenient. So here we will write it as limit x tends to infinity tangent 1 by x डिवाइडेड बाय x को नीचे आप ले जाओगे तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन x. अब टेंजेंट 1 बाई एक्स आपका 0 है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स 0, तो ये आपकी फॉर्म चेंज हो गई 0 बाई 0. सो वी कैन अप्लाई हेयर L'Hospital रूल. तो L'Hospital रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर. उसके लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करोगे. So derivative of tan in 1 by x will be secant square 1 by x into derivative of 1 by x is minus 1 by x square, and नीचे 1 by x का derivative again minus 1 upon x square. This minus 1 upon x square will get cancelled, and now the limit x tends to infinity इसमें डालोगे, so you will get secant square 0, and secant 0 is 1, and therefore limit comes out to be equal to 1. So now comes to another example. Limit x tends to 0 x to the power m into log x raised to the power n. Where m n are given to be natural numbers. So because m and n are natural numbers, that means positive होंगे हमारे पास ये. So if you put x 0 over here, so 0 की power something positive, so you will get 0 into log 0, and log 0 raised to the power, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है n. तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 0 इज 0. log 0 की वैल्यू क्या होती है, log 0 हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी, एंड दैट मीन्स कि ये जो फॉर्म है ये आपके पास क्या फॉर्म आ रही है, अगेन 0 बाय इन्फिनिटी फॉर्म विद नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, बट इट इज 0 बाय इन्फिनिटी फॉर्म. सो वी विल चेंज दिस, एंड चेंज करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 log x रेज टू दी पावर n. log को हम नीचे नहीं लेके जाएंगे,
देखिए हमें उस फॉर्म में चेंज करना है जिससे आपका आगे जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सिंपल हो, डिफरेंशिएशन आपका सिंपल हो। अब ये आपके किस फॉर्म में चेंज हो गया, log 0 आपका इन्फिनिटी आ रहा था और नीचे आपका x की पावर -m है, यानी कि 0 की पावर नेगेटिव नंबर, तो वो भी इन्फिनिटी। सो वी हैव इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, and because it is infinity by infinity form, so you can apply L'Hospital's rule over here. So this will be लिमिट x टेंड्स टू 0 log x टू दी पावर n का आप डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर n इंटू log x रेज टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाय इंटू में सॉरी ऊपर डेरिवेटिव भी ले लीजिए, log x का भी डेरिवेटिव लेना है आपको साथ में 1/x, और नीचे x की पावर -m का डेरिवेटिव लेंगे -m x की पावर -m -1। ये जो 1/x है ये आपका ये नीचे आ जाएगा x, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 n इंटू log x रेज टू दी पावर n -1, और ये सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास आ गया -m x की पावर -m। अगेन अब ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ऊपर हमारा वही log 0 इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी आपका इन्फिनिटी आ रहा है, सो दिस इज अगेन infinity by infinity form. So again you will apply L'Hospital rule. So this will comes out to be limit x tends to 0 n into n minus 1 log x raised to the power n minus 2 into log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, और नीचे अगेन -m हमारा एक ऑलरेडी था और एक -m और आएगा, तो ये हो गया -m का स्क्वायर एंड x की पावर -m -1। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो यू विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 n इंटू n -1 log x रेज टू दी पावर n -2 डिवाइडेड बाय -m का स्क्वायर इंटू x की पावर -m। सो दिस इज अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। आप इसमें क्या देख रहे हो कि जो log x की पावर है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है और नीचे जो हमारी x की पावर है वो -m वो एज इट इज है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में तो हमारे पास हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाएं, जैसे अभी आपने यहाँ इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, तो आपके पास log x की पावर n -2 आ रही है। If you differentiate it n times, means continuing the process like this and differentiating it n times, you will get limit x tends to 0 n into n minus 1 up to डिक्रीज होते होते ये 1 तक जाएगा, और log x की पावर क्योंकि n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो n माइनस n यानी कि 0। नीचे जब आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था तो -m² आया था, जब हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट -m की पावर n और x की पावर एज इट इज -m। ठीक है, ये पूरा हमने सिंप्लीफाई करके ले दिया, ऊपर 1/x जो आया वो वापस नीचे आप ले आए, मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। log x की पावर 0 आपके पास 1 हो गया, तो ये हमारे पास ऊपर आ रहा है n फैक्टोरियल अपॉन -1 की पावर n m की पावर n एंड x की पावर -m, और इसकी लिमिट आपको लेके चलनी है एज x टेंड्स टू 0। तो ऊपर तो आपका फाइनाइट नंबर 0 आ गया है, n फैक्टोरियल है क्योंकि n फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास आ रहा है इन्फिनिटी क्योंकि x की पावर -m है।
So something finite upon infinity, so value comes out to be equal to 0. So these are some examples of indeterminate forms 0 into infinity. So now we will come to the indeterminate form infinity minus infinity. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसके लिए भी हमें क्या करना है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे आप एलसीएम एटसेट्रा लेके चेंज करके फॉर्म, एंड वी विल ट्रांसफॉर्म इट टू आइदर टू 0/0 फॉर्म और टू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। और फिर उसके बाद हम फिर वही एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। तो इसके भी हम एक दो एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स। ये 0 प्लस हमने इसलिए लिया यहाँ पर कि पॉजिटिव वैल्यू दिखाने के लिए। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ताकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बने। जैसे आप यहाँ x को 0 रखोगे तो 1/0 हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, एंड कोसेकेंट 0 प्लस दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आपके पास है तो वहाँ वो वैल्यू भी पॉजिटिव है, और साइन 0 0 होता है तो कोसेकेंट 0 आपका इन्फिनिटी होगा। सो देयरफॉर ये हमारी फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यू कैन राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये प्लस ही है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे आप यही मान के चलिएगा। सो दिस इज 1/x माइनस 1/sin x, एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एलसीएम लेना है आपको, तो ये हो गया sin x माइनस x अपॉन x इंटू साइन एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में आपका x इंटू साइन एक्स है, इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय x। नाउ यू नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, दिस लिमिट इज 1। ये हमारा फार्मूला है, इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये निकाल कर भी दिखा सकते हैं। आप देख रहे हो ये 0/0 फॉर्म बन रही है sin x अपॉन x की, तो आप जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो cos x अपॉन 1, तो इसलिए लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी 1। तो इसको जब आप यहाँ यूज करोगे, सो दिस लिमिट विल चेंज टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। x 0 पुट कर रहे हो तो आप देख रहे हो ये आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है। सो यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। अगेन हम x को यहाँ 0 पुट करें, cos 0 1, सो 1 माइनस 1 0, और नीचे डिनोमिनेटर भी 0। सो दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म। सो अगेन you will apply L'Hospital rule. So this will comes out to be minus sin x divided by 2. And if you put the limit as x tends to 0, so 0/2, this will comes out to be equal to 0. Okay. So let us do one more example. Say limit x tends to 0, one upon x square minus cot square x. ये देखिए, इसमें आप x को 0 पुट कर रहे हो तो 1/x तो हमारा इन्फिनिटी आ ही रहा है,
cot 0 की वैल्यू भी infinity, so this is your infinity minus infinity form. So we will simplify it. Limit x tends to 0, 1 upon x square minus cos square x upon sin square x. And now take the LCM. So this will be limit x tends to 0, sin square x minus x square cos square x and divided by x square sin square x. सो अगेन इसमें नीचे जो आपका एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। आप इसको इस तरह से लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान देखना है कि आप देख रहे हो कि ये आपका न्यूमरेटर में भी ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते कि आप यहाँ भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ आपका ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। जबकि नीचे आप इसकी सेपरेट लिमिट ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स स्क्वायर की हम अलग से ले सकते हैं और साइन स्क्वायर एक्स की अलग से। इसलिए आप साइन स्क्वायर एक्स को लिख दोगे साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका डिनोमिनेटर में। जबकि जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, वहाँ क्योंकि आपका ये कंप्लीट फंक्शन है, प्लस माइनस का साइन है बीच में, वहाँ आप इसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ये तो साइन एक्स अपॉन एक्स हमारा एक बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में होकर अलग फंक्शन हो जाएगा, इसकी लिमिट आपके पास 1 आ जाएगी। So therefore you will get this is equal to limit x tends to 0, sin square x minus x square cos square x and divided by remaining आपके पास बच गया ये x4। अब ये हमारी जब आप x को 0 पुट कर रहे हो इसमें, तो सो यू आर गेटिंग हेयर 0/0 फॉर्म। देख रहे हो आप, साइन स्क्वायर 0 0 एंड एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 0 और नीचे एक्स की पावर 4 ये भी 0, सो इट इज़ 0/0 फॉर्म। सो यू कैन अप्लाई एल-हॉस्पिटल्स रूल ओवर हेयर, लगा सकते हो यहाँ पर। उसी तरह से आपने डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चंस किए हैं और इससे पिछले वीडियोस में भी हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। आप उस मेथड से इसको कर सकते हो इजीली, बट थोड़ा सा यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो लंबा होगा और आपको कई बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ हम इस तरह के क्वेश्चंस को, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं या लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, इनको हम एक्सपेंशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगी एक्सपेंशन मेथड बाय यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स ओवर हेयर। आपको ये एक्सपेंशंस याद होने चाहिए। साइन एक्स का एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो पिछले क्लासेस में। द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इज, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। इसी तरह से सिमेट्रिकली जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिखोगे, वो हमारा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड इसका भी आपने स्क्वायर लेना है।
और नीचे आपका है ही x की पावर 4। अच्छा, ये एक्सपेंशन मेथड से जब हम करते हैं तो जो भी आपकी हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हम उस हिसाब से एक्सपेंड करते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ आपका x की पावर 4 है, तो ऊपर जो आपको जो टर्म्स लेनी है, हमें x की पावर 4 तक की ही टर्म्स चाहिए, उससे आगे वाली टर्म्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिमिट यहाँ पर आपके पास है x टेंडिंग टू 0। x की पावर 4 अगर आपका कॉमन आकर कैंसिल होगा तो रिमेनिंग आकर x की पावर्स होंगी, तो वो 0 पुट करने से क्योंकि 0 हो जाएंगी, इसलिए हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। हम ऊपर सिर्फ x की पावर 4 तक इसको सिंप्लीफाई करेंगे। So this comes out to be equal to limit x tends to 0। ये स्केयर खोल देना है हमने यहाँ पर। a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है आपके पास? a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, वो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास ये है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जिसका होल स्केयर। सो फर्स्ट x का स्केयर आप लोगे, देन एक्स क्यूब का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो x की पावर 6 आएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म ले लीजिए 2ab वाली, ये हो गया माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 2x की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इससे आगे आपकी सारी हायर पावर्स आएंगी तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में है एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी बाहर है तो हमें x4 तक चाहिए, तो अंदर से आप सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म्स लोगे। तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे आगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लोगे x4 आएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करिए 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, so you are getting minus 2 x square by 2 factorial एंड रिमेनिंग टर्म्स आपकी हायर पावर्स होंगी, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। और नीचे आ गया हमारा x की पावर 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सिंप्लीफाई करके देखो, एक्स की स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये आपस में आपका कैंसिल आउट हो रहा है। दिस यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और ये भी आपका -1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बचा? ये आपके पास आ रहा है यहाँ से -2/3 फैक्टोरियल है, दैट मीन्स इट इज माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय, फिर से देखिए, दिस इज माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। और जो नेक्स्ट वाले से आ रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस मीन्स प्लस एक्स टू दी पावर 4। और आगे हायर पावर्स आएंगी हमारे पास सारी, एंड देन डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास? डिवाइडेड बाय x4 था। लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू 0। आप देख रहे हो x की पावर 4 आपका कॉमन आकर कैंसिल हो गया, ये हमारा -1/3 प्लस 1 क्या बचा? 2/3। So you are getting limit x tends to 0 2/3, x4 नीचे से कैंसिल हो चुका है, प्लस ये ऑर्डर ऑफ x मीन्स टर्म्स ऑफ हायर पावर्स ऑफ x, एंड इफ यू पुट x टेंड्स टू 0 ओवर हेयर, तो ये सारी टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी। सो द आंसर विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/3। So this is your expansion method and these are some examples of the indeterminate form infinity minus infinity. So in the next video we will discuss some more indeterminate form.